important channels और data science वगैरह के लिए you'll find the cover both. Okay, so now let's try to what is like first let's try to implement both like k-mean clustering and hierarchical clustering, and then we will go for db scan. Okay, so remember एक और cluster होता है, it's called mean shift cluster, but that is not much important. That just like k-mean, it's not like just like k-mean. उसमें आपको cluster नहीं बताना होता है, तो थोड़ा सा तो changes है ही है उसमें भी, but that is not too important. Most important is db scan. That's why I want try to cover that also, db scan as well. Okay, so let me open the code one file. Just a minute. So we can perform today all of them. सो आई बिलीव ऑल ऑफ यू हैज़ द डेटा, है ना? डेटा एक मैंने शेयर कर रखी है आप लोगों के पास, सभी के पास. So suppose I have this data, just on this. What is this? Yeah. So this is data, and I want to apply k-mean clustering on this data. So हमने एक तो स्क्रैच से किया था, डोंट वरी अबाउट स्क्रैच, बस हमने फिर इसको के मीन को उससे भी किया था. तो फिर से करते हैं वापस से पूरा चार तीनों क्लस्टरिंग टेक्निक अपनाते हैं. अगर जिसने नहीं भी किया है क्लास, वो भी उसको भी दिक्कत ना हो, ऐसे करते हैं. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्लस्टर. लेट मी ओपन द कोड वन फाइल. I don't know, I still anyway. So if you see here, you can see the library from sklearn.cluster import k-means. So let's try to build this k-means. So if we see, we have this, let's talk about the object, maybe a model. So model is like just I'm trying to make model. So k-means, now I have to give the how many number of cluster I want. Okay, सपोज मैं इस डेटा सेट में दो क्लस्टर बनाना चाहता हूँ या तीन क्लस्टर बनाना चाहता हूँ, तो वो मुझे देना पड़ेगा. ठीक है, एंड सेकेंड वन इज द इनिशियलाइजेशन मेथड. इफ यू सी ना इन, अच्छा मे बी ना दिस फाइल इज नॉट विथ यू गाइज, ये वाला पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि मैंने पहले ऐड नहीं किया था. तो आई विल शेयर दिस अगेन टू all of you. So like see this, like we have k means. So now we have, you can see this now, n cluster, we like you can give the cluster. So suppose I am giving here, so I'm giving n cluster is equal to 2 and initialization k means plus plus. तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था व्हाट इज इनिशियलाइजेशन एंड व्हाई इट्स k means plus plus. इफ यू रिमेंबर, मैंने ये ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर रखा है. ठीक है, कि व्हाई वी डूइंग k means plus plus. एनीवे, सो यार शेयर्स क्यों गिर रहे हैं? यार सिटी से भी गिर रहा है, ओएनजी से भी गिर रहा है. व्हाट इज हैपनिंग? Anyway, see this. So guys, I'm giving like k means is equal to, I'm giving k means is equal to, see this, n cluster is equal to 2 and initialization technique is like k means plus plus. So this is basically the methods, and then suppose I want to fit this.
So I can fit model dot fit and give the data. That may be data is equal to data. I think data name is data. Yeah. And suppose I predict this. See this. If I predict this model dot predict, give the data here, so it will give us see the labels like कौन से रो का कौन सा label है and saying either 0 or 1. Are you getting my point? Just labeling this. But there is a problem with k-means, if let's first complete, then we'll compare all this clustering technique. Okay. So first problem is we don't know how many number of cluster needed. We are giving two, maybe there are more than two cluster. So let's try to find how many cluster we needed, and that even if you remember, I told you how can we do this in the last class. याद होगा तो मैंने बताया था कि हम elbow method यूज करते हैं ना. So for elbow method we can write a loop. एक लूप लिखते हैं 1 से करते हैं क्योंकि एक तो क्लस्टर मिनिमम बनेगा. सो 1 से करते हैं और इसको कॉपी करते हैं. ठीक है, जस्ट डू द कॉपी दिस, पेस्ट हियर मॉडल डॉट एन डॉट क्लस्टर. ठीक है, यहाँ पर आई लिख देते हैं. तो पहली बार तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, फिर 2, ऐसे करके 10 होगी. उसके बाद करेंगे मॉडल डॉट फिट डेटा. एक्चुअली व्हाट हैपन इफ यू सी दिस, अगर यहाँ तो हमने फिट किया है, मैं इसका इनर्सिया निकाल सकती थी. मॉडल डॉट inertia or inertia, I believe. No, there's just a minute. Yeah, here you can see this inertia, na? Okay. So this is inertia. So we can give this inertia basically here. देखो यहाँ पर इसकी इनर्सिया आ गई. मैंने आप लोग को बताया भी था कि जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ क्लस्टर बढ़ेगा इनर्सिया विल डिक्रीज. सो हमें ये पता करना पड़ता है कि किसके बाद अगर क्लस्टर बढ़ाए भी तो इनर्सिया में बहुत चेंजेस नहीं हो रहे हैं, और वही हमारा नंबर ऑफ क्लस्टर हो जाता है. दिस इज द मेथड बेसिकली. सो लेट्स ट्राई टू डू दिस. सो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से इनर्सिया वाले को, और यहाँ पे एक लिस्ट में स्टोर कर लेते हैं हर क्लस्टर के लिए. मे बी दैट लिस्ट इज ए वाई. So let's make a list, empty list y, or every time we do y dot append. Every time means like जब जब भी वो रन हो रहा है, जैसे एक क्लस्टर के लिए, फिर 2, फिर ऐसे 10 तक क्लस्टर्स के लिए हम यहाँ पे इसको y में अपेंड करा रहे हैं. सो इफ़ यू सी थोड़ा टाइम लेगा रन होने में. ये सारे के लिए चलेगा वो इन रेंज 1 to 11. सो हर बार के लिए चलेगा, फिट करेगा और इनसे स्टोर करेगा. ठीक है भाई. अब अगर आप देखिए हमारे पास तो ये y आ चुका है 1 से लेके ये सारा. अब एक x बना लेते हैं प्रिंट करने प्लॉट करने के लिए. तो द x इज इक्वल टू लिस्ट एंड गिव द रेंज 1 to 11, 1 से लेकर के 11 तक, क्योंकि एक बार क्लस्टर 1 है ऐसे करके. और लेट्स प्लॉट दिस. इंपोर्ट matplotlib dot py plot as plot as plt, and then say plt dot plot x comma y. So you can plot this and see we will get like here you can see this 4, and after 4 काफ़ी शार्प like changes नहीं है, तो we can take a four number of cluster. So now if you want to build a k-mean cluster, you have to give number of clusters is equal to 4, and we are able to do this. Okay, so once we find that, we are able to do this. Now how we do the hierarchical clustering? Okay, this is the normal clustering. Let's talk about the hierarchical clustering. In hierarchical clustering again, we need the number of cluster. Okay, so either you use elbow method or any method. So we do the elbow method again. Already हमारे पास है, हमें पता है कि डेटा के लिए 4 है. So let's go see and see this.
दिस इज बेसिकली योर हायरार्किकल मेथड. मैंने कल समझाया था हायरार्किकल कैसे वर्क करता है. इट विल फर्स्ट टेक वन, लाइक इट विल अज्यूम एवरी डेटा इज अ व्हाट, एवरी डेटा इज अ क्लस्टर, एंड देन स्टार्ट टेकिंग, लाइक एक से एक को इसको मर्ज करना शुरू करेगा. सो डिफरेंट, लाइक इट विल टेक अ डिफरेंट लिंकेज मेथड. यू कैन सी वार्ड, वार्ड इज अनदर लिंकेज मेथड. लिंकेज मीन्स लाइक जिसमें क्या होता है, सिंगल होगा, एक तो होगा कंप्लीट होगा, सिंगल में मैक मिनिमम दूरी, मैक्सिमम दूरी है ना, एवरेज होगा. So these are the different linkage method, and this is the basically your equation matrix. So even I told you all the equation matrix like Euclidean distance, cosine, if you remember. So you can change that as well. A number of cluster we already know we need 4 number of cluster. So let's run it again. If you see what is happening here, again if you see we need number of cluster. Okay, again we need a number of cluster. Is there any problem here? Just a minute. इसको एक मुझे कॉपी करता हूँ. I think there is some mistake. Go here. Yeah, go this one. But यहाँ पे भी एक challenge है. The same with your like the K-mean clustering. We need a number of cluster. Here we need again number of cluster. So we have to give the number of cluster. Just a minute. So we have to give the number of cluster. This is 4. Then we need the equation matrix. So we can give equation matrix as well. We can give the equation matrix as well, and after that we have one thing, that is linkage. So I think now it's working. Yeah, done. So here you can see we are able to build a model. Now let's, we already know there are 4 this one, so just do this 4. Acha, there is a one thing I will just tell you what is that. ये बड़ा important है किसी भी data analysis के लिए. So let me do this, and first let me predict this, then I will let you know what is this. So I'm do like predict, and this data, and let's store this prediction is maybe hierarchical clustering result. Okay, HCR. What is this? Labels. There's a note. Just a minute. So how to return this? Yeah, let's see the labels. Okay, so let's see the labels. Let me see the labels. So यहाँ पे हम labels करते हैं suppose. Yeah, we got the labels. Let's store these labels. Suppose I am saying this hierarchical clustering result. Okay, we store the label. अब what we do, जो डेटा है ना उसको, एक डेटा को हमने किया है, इसको मैं नाम लेता हूँ डेटा हायरार्किकल. डेटा एच इज इक्वल टू डेटा, मैं कुछ करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको. सी नाउ इस बिकम डेटा एच, डेटा हायरार्किकल. नाउ डेटा एच में जो हायरार्किकल डेटा है इसमें टारगेट देते हैं, और इस टारगेट को लेबल्ड करते हैं. तो वी कैन डू द लेबल विथ हायरार्किकल रिजल्ट. नाउ वी हैव दिस डेटा एच. इफ यू सी दिस, just see this data dot head, see this, we have the target, this we labeled this data with hierarchical targeting. Now let's go ऊपर चलते हैं. Or suppose this model, here what we did, here we take the k-mean clustering, simple k-mean clustering. So let's talk about this k-mean clustering. It's not a hierarchical metric. See this, what is this? What is this?
ओके वी डिडंट फिट राइट नाउ, इसलिए इनर्सिया नहीं बता सकता, पहले हमें इसको फिट करना पड़ेगा, देन वी आर एबल टू डू दिस इनर्सिया। सपोज आई मॉडल डॉट फिट, एनीवे हम इनर्सिया की यहाँ रिक्वायरमेंट भी नहीं है, but let's do this. So now model dot fit and we'll get the inertia anyway, you don't need the inertia as well. So but anyway I want to do the prediction. So this is a prediction, I want to store this, this is the mean hierarchical clustering, this is a mean clustering result, I'm saying this is MCR, this is HCR, this is MCR, मैं इसको स्टोर करता हूँ। उसके बाद डेटा बनाते हैं, तो जैसे वहां पर डेटा था, यहाँ लेंगे डेटा हायरार्किकल था, यहाँ लेंगे डेटा मीन, और इसको करते हैं डेटा को पुट करते हैं अपन, तो डेटा मीन आ गया। अब डेटा मीन को भी टारगेट बनाते हैं, जस्ट गिव द टारगेट हियर, टारगेट एंड गिव दिस एमसीआर, बिकॉज दिस एमसीआर, सो गिव द एमसीआर। नाउ सी दिस, do one thing, so first see the data, your data, so this is data, it may be headed to, and now why is two target we have, sorry ना, I think I एक बार रीड करने दो वापस से, लग रहा है पीछे नीचे चेंजेस हो गए, एनीवे जस्ट गिव मी अ मिनट। एक सेकंड ना, ये सारा आवाज वापस से लूप चल रहा होगा, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट, ये नहीं चलाना चाहिए था, बस एनीवे आई थिंक हो गया। सो लेट्स अगेन डू दिस, आई बिलीव वहाँ नीचे गड़बड़ हो गया होगा। तो नंबर ऑफ क्लस्टर हमें 4 चाहिए थे, तो लेट्स द नंबर ऑफ क्लस्टर इज इक्वल टू 4, फिट दिस, ठीक है डन, मॉडल डॉट इनर्शिया, ओके डन, इसकी उससे रिक्वायरमेंट है नहीं। अब इसको हम लोग करते हैं प्रेडिक्ट, सो इफ यू प्रेडिक्ट दिस विल गेट द MCR, इफ यू चेक द MCR, सी दिस MCR, दिस इज MCR, ओके 4 होगा ना, हाँ ठीक है 4 है। नाउ लेट्स डू लेबल्ड दिस, लेट्स डू लेबल्ड इट, तो पहले डेटा को पुट करते हैं डेटा M में, सो नाउ इफ यू सी द डेटा M हियर, डेटा उसके अंदर आ गया है डेटा M में, सो जस्ट सी द हेड एंड टेक दिस, या सी दिस, सो डेटा M हो गया। अब डेटा M में टारगेट में MCR पुट करते हैं, सो नाउ इफ आई नाउ चेक सी दिस, सो 0 1 टारगेट हियर, वी हैव दिस टारगेट नाउ, एनीवे सो ये हो गया। अब एक बार देखते हैं काउंटिंग इसकी, ठीक है, इसकी काउंटिंग देखते हैं, वैल्यू काउंट करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ आइडिया लगेगा। लेट्स डू द वैल्यू काउंट हियर, target dot value underscore counts, see this we got the value sorry, so we got the value counts here। अब इसको से छोड़ देते हैं, वापस चलते हैं अपने नेक्स्ट अप्रोच में, डेटा को देखते हैं, डेटा हैज टू बी लाइक सेम, सो डेटा डॉट हेड, इसमें क्यों चेंज आ रहा है, ओके लेट्स रीड अगेन डेटा ना, उसमें क्यों चेंज आ रहा है, बट एनीवे यहाँ पर जाते हैं नए वाले में, जब हिरारिकल पे जा रहे हैं, सो वेयर वी आर गोइंग टू हिरारिकल, ये हो गया, ये हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट द हिरारिकल, so I'm starting hierarchical here, okay, anyway sorry, so let's read the first data again, so data will be clean, see ये data हो गया। now again do this hierarchical, this is hierarchical method, so let's do this clustering dot fit किया, उसके बाद labels find किया HCR में, data H में रखा, anyway see this is data H, now let's see the value count, इसका value count देखते हैं, so data H यहाँ पे कैपिटल था, टारगेट डॉट वैल्यू, सॉरी वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, रन इट, सी दिस इज 258 254 245 243, ये एक है, इसको आप देख लो, और ऊपर जाओ उसका देखो क्लस्टर्स, या दिस वन 256 250 249 245, सो ये सेम नहीं है, आप देख लो इसको, जैसे यहाँ पे 256 है, 2502, ये क्या सेम है क्या, सो एक तो ये कभी भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि चाहे मैं किसी मेथड से करूं, क्लस्टर नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे क्लस्टर में वो सेम होंगे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, गॉट इट और नॉट।
ये ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको हमेशा ऐसा होगा कि हेरारिकल और आप करें या फिर के मीन से करो तो आप रिजल्ट सेम पाएंगे, बिल्कुल नहीं है ऐसा, जरूरी बिल्कुल नहीं है। ये समटाइम्स व्हेन यू डू मशीन लर्निंग मॉडलिंग ना, मे बी यू आर गेटिंग सेम, बट हियर इज नॉट पॉसिबल, है ना। मे बी समटाइम्स यू गेट, रेयरली, बट मैक्सिमम टाइम नॉट पॉसिबल, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। अब देखो दोनों के साथ एक प्रॉब्लम है, दोनों के साथ एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम देखो, चाहे वो के मीन क्लस्टरिंग हो या हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, बोथ हैव वन प्रॉब्लम। व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? चाहे वो के मीन क्लस्टरिंग हायरार्किकल क्लस्टरिंग हो, इसके साथ ये प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट नो, सपोज देयर इज सम नॉइज इन दिस डेटा, मे बी जो डेटा है उसी में कुछ नॉइज है, तब क्या करेंगे? क्या विल यू यूज क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग और के मीन क्लस्टरिंग, है ना। ये बड़ा एक चैलेंज है जब अगर आपके, क्योंकि अगर आपके डेटा में लाइक अगर आपके डेटा में वो है क्या बोलते हैं नॉइज है, तो के मीन हो या फिर हायरार्किकल हो, वो तो क्लस्टर बना ही देगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ता नॉइज है कि नहीं है। एक तो बड़ा चैलेंज ये है, ठीक है। So that's why DB scan is really important. DB scan will what will do? It will even take like what is noise in this data. Outliers को खुद ही निकाल देगा. So that's why DB noise is really important. The algorithm is really, really important, है ना. And like even not here in your syllabus, even I think in many syllabus I didn't find DB scan. I don't know why. Even here also we don't have DB scan. If you check your syllabus now, you have k-mean clustering, you have hierarchical clustering, but you don't have DB scan. And even I saw different courses, like different companies courses. DB scan is not there. I don't know why, but DB scan is really important, really, really important. So let's try to build DB scan. Even if after let me first build this, then I will explain how DB scan will work. Okay, so let me copy this DB scan. So just go here. Okay, let's first read data again, क्योंकि data उसका change हो गया होगा, हमने इसको वो कर लिया. So let's read data again. Okay, so if we go here for DB scan, let's read the data first. Okay, read the data first. So run it, check the data. Now data is okay, correct. Now let's see the DB scan. I'm just telling what is this. See, EFCE means the your radius width. Just ऐसा समझिए कि मैं एक सर्कल बनाऊंगा, उसका रेडियस है 3. I will change this width as well. Okay, and minimum sample means I want to say कि भाई इससे कम सैंपल इसमें होगा तो मैं उसको नहीं सिलेक्ट करूंगा. Just like this, just think like this. Okay, I will explain this how it's working, but just first like try to use it. Just a minute. How is this? Okay guys, so I'm saying हाँ, so this is basically the ellipse, like कितने आप epsilon value basically कितना width आप रखना चाहते हो, minimum sample is 2. So let's run it and let's feed the data. So this is clustering dot. देखो यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया कि how many number of cluster I need it, ये ऑटोमेटिकली लेगा. there is no need to say this, ठीक है. ये एक सबसे एडवांटेज है इसके अंदर. So just do this clustering dot fit and now it's fit. Let's do this clustering dot labels, no labels, I believe, yeah. So see, we got the labels, and देखो ये इसने क्या करा, इस हाँ सबसे बड़ा चैलेंज है ये. देखो इसने क्या कर दिया, इन्हें सबको एक ही लेबल दे दिया. ये बहुत चैलेंज है. सी दिस. सो नाउ व्हाट इज हर्डल? हर्डल इज टू
do this value. Suppose let's take it maybe more 4. ये थोड़ा सा हर्डल है. Otherwise everything will be okay. It's very nice model, but देखो still we are not getting. Maybe let's expand this one. Maybe make it 5. Still we are not getting. So make it small. Maybe 0.5. And let's see this. Now we can get this. See this, we get two things. We are getting 0 and we are getting -1. -1 is not a label. Just telling you. -1 is not a label, it's a outliers. So whenever you got a -1, that means it's an outlier. And here you are getting 0 somewhere, we are getting 2 as well. See, we are getting 2. So there are some labels which is 2. There are some -1, there are some 0. Even we are getting 1 as well. So let's try to do one thing. Let's make it maybe 2. See what happen. So now see we have 0, 4 and all. Let's try to make it maybe 0.2. So yeah, now we are able to find lots of cluster. You say 41, 42, 43. Okay, so that is a problem. You have to fix this value. So we have to see कि कितने पे ये work करेगा better. Maybe 0.3, maybe 0.4. So we really don't know. Sometime this is taking, like here you can see, is getting maximum 0. Then you are getting even -1. They are 14, 11. These are the different cluster. Okay. सो मे बी यू थिंक, देखो ये इसमें है कि आपको इसमें बहुत मेहनत करेगी इसको सेट करने में. एंड देर इज नो एग्जैक्ट रूल कि आप इसको इतनी वैल्यू बता सकते हैं. यू हैव टू टेक दिस. आपको बार बार में भी आपको लूप चलाना पड़े, या फिर आपको ग्रिड सर्च करना पड़े, आपको रैंडम सर्च करना पड़े, फाइंड दस वैल्यू. दैट इज अ स्टोरी. बट दिस मॉडल इज वेरी नाइस. इसका जो अप्रोच है वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये हमें हमेशा बताएगा कि कौन से वैल्यू हैं जो आउटलायर्स हैं, जिसकी नीड नहीं है. क्या केवल यही नहीं और भी चीज. जैसे कई बार हो सकता है कि के मीन्स जो है वो केवल आपके स्पेरिकल शेप्स के लिए ही बेटर वर्क करता है. इफ देर इज नो स्पेरिकल शेप इन योर डेटा सेट, मे बी इट विल नॉट वर्क बेटर. बट दिस. ठीक है. सो दिस, ये थोड़ा सा एक हडल है कि वी हैव टू डू दिस ग्रीड सर्च और मे बी लाइक रैंडम सर्च. इवन आई थिंक आप लोगों को पता भी नहीं होगा ग्रीड सर्च, रैंडम सर्च. आई विल एक्सप्लेन दिस जब हम एक प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि दैट इज़ नॉट कोई पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है, वो समझाने की चीज़ है. तो जब मैं प्रोजेक्ट करूँगा तो बताऊँगा कैसे ग्रीड सर्च यूज करते हैं, या टेंसर सर्च, सॉरी रैंडम सर्च, कि हम कहीं पे अप्लाई करने के लिए, फिट करने के लिए. ठीक है. सो वी विल सी दिस. एक मिनट ना. एक मिनट कहीं ना.
हाँ देखिए, सो बेसिकली हाँ मैं क्या कर रहा था, ग्रिड सर्च एंड रैंडम सर्च, वो हम लोग देखेंगे। एक मिनट गाइस ना। ठीक है, ठीक है, देखिए इधर। सो व्हाट आई एम सेइंग, दिस वैल्यू इज रियली क्रिटिकल, वी हैव टू डू दिस। तो डिसएडवांटेज एक्चुअली यही है इसका, बट ये डिसएडवांटेज नहीं है, बिकॉज इफ यू आर डूइंग समथिंग यू हैव टू डू दिस आफ्टर लाइक पैरामीटर ट्यूनिंग। एक ग्लास नहीं लाया एक्स्ट्रा, कोई नहीं, कोई जब फ्री होना तो ले आना, ठीक है, रुक जाओ। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। देखिए इधर, तो ये एक चैलेंज रहेगा आपको कि यू हैव टू फाइंड दैट वैल्यू, बट दिस मेथड इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार है, ठीक है। लेकिन देखो अब यहाँ हम लोग नहीं सेट नहीं कर पा रहे हैं, अब थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि 2 मिनट के अंदर सेट कर देंगे। मे बी हमें ग्रिड सर्च से पता करना पड़ेगा एग्जैक्टली कितनी वैल्यू हो सकती है, तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि वो हमें करना पड़ सकता है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सेट दिस, क्योंकि ऑलरेडी देखो यहाँ पे 14 पे जा रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम 14 लेके जाएगा, 11 लेके जाएगा, 0। तो अब शायद ये ठीक ठाक हुआ है, क्योंकि हमें मिनिमम 4 क्लास तो बन ही रहा था ना, ऊपर हमने देखा ही था ना। तो आई थिंक नाउ इट्स डूइंग समथिंग, लेट्स ट्राई टू डू मे बी मेक इट 3 2 5 2 6 मे बी। नाउ दिस इज 0, एक क्लास है, दूसरा 11 12 है, तीसरा 22। हाँ देखो, अभी देखो, नाउ वी आर एबल टू, देखो एक आध तो छोटे छोटे क्लास बनेंगे, वो तो आउटलायर में हटा देंगे। देखो अब हम इस वैल्यू पे आकर के कुछ कर रहे हैं, लाइक देखो एक 0 क्लास हो गया, एक 12 नंबर क्लास हो गया मैक्सिमम डेटा है, और एक 22 मैक्सिमम डेटा है, और एक 33 मैक्सिमम डेटा है। बाकी जो आ रहे हैं उनको हमें हटाना पड़ेगा, बट ये चैलेंज है किसके साथ, के मीन क्लस्टरिंग और एरिकल के साथ। वो इतना स्मार्ट नहीं है कि वो पकड़ पाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। देखो ये पकड़ पा रहा है कि ये तो आउटलायर हो रहे हैं इसके हिसाब से, कुछ डेटा को वो हटा रहा है, ठीक है। ये के मीन क्लस्टरिंग और एरिकल में पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पॉसिबल है। Getting my point? Because you are not giving the number of cluster, you know. In hierarchical we were passing the number of cluster, so उसको उतने cluster तो बनाने ही बनाने हैं ना। But in this case, we are just uploading the data, okay, and giving the algorithm and trying to make the clusters. We are not saying कि make इतना cluster और इतना cluster बनाइए। Got it? तो देखिए, किसी को डाउट हो तो पहले पूछो, फिर मैं बात करता हूँ आगे। So now we're done with 3 cluster, okay. Now we can do one project जिसपे हम पहले clustering करेंगे, फिर उसमें machine learning model लगाएंगे, okay. So let me talk about the data. So data is basically क्या है, data आपके पास एक डेटा है आपके पास जिसमें कि IoT डिवाइस का डेटा है, लाइक आपके घर में फ्रिज है, वो है, लाइक जितने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए, सिंपल वाली नहीं, जो लाइक जो आजकल होते हैं ना स्मार्ट डिवाइसेस। I'm talking about दो स्मार्ट डिवाइस, लाइक डिश वॉश है, आपके कूलर एसी है, आपका फ्रिज है, जो भी चीज़ें हैं होम अप्लायंस जितना भी, बट स्मार्ट होने चाहिए वो, ठीक है। उनका डेटा है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास मतलब कैगल का डेटा है, उसमें हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, उसमें हमें ये पता है कि कई बार क्या हुआ है, इस डिवाइस पे स्पैम हुआ है, ठीक है। सो यू नो वी हैव टू डू वन, लाइक वी हैव टू फाइंड कि कहाँ पे स्पैम हुआ है और कहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहले हम क्लस्टर करना पड़ेगा उसमें कि ये वाला स्पैम है और ये वाला स्पैम नहीं है, ठीक है। अब देन वी हैव टू बिल्ड अ मॉडल, ठीक है। देन यू हैव टू बिल्ड मॉडल टू क्लासीफाई कि नेक्स्ट टाइम कोई आएगा तो बताना है कि आपको स्पैम है कि है नहीं। तो आपने सीधे मशीन लर्निंग मॉडल नहीं सकते, पहले आपको क्लस्टरिंग करनी पड़ेगी, आपको पता करना पड़ेगा एग्जैक्टली स्पैम। जैसे मैं एक और डेटा ढूंढूंगा अगर हो कि नहीं, वो तो बहुत अच्छा डेटा सेट था। एक मेरी स्टूडेंट थी, उसने कहीं पे अप्लाई किया था उस जॉब के लिए, तो उसको वहाँ से आया था वो डेटा, वो जॉब भी लगी थी, उसको करके देना था। उसमें भी ऐसे ही कुछ था, पहले हमें क्लस्टरिंग करनी थी और फिर मॉडल बिल्ड करना था, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें ये था कि जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, ट्रांजेक्शन बैंक ट्रांजेक्शन, उसमें हमें पता करना था कहाँ पे वो इशू हुआ है, ठीक है। तो उसका भी डेटा सेट ऐसा ही था, उसमें भी पहले डेटा सेट उन्होंने बस दिया था, तो पहले उसको क्लस्टर करना था, ये कि एग्जैक्टली लेबल्ड नहीं था वो, पहले उसको लेबल्ड करना था, देन मॉडल लगाना था।
क्लियर गाइस, समझ में आ रही बात आप लोगों को? बोलो यार, किसी को दिक्कत? एनीवन? क्या लिखा है एनोनिमन? सर व्हाट एग्जैक्टली ट्राइंग टू फाइंड ए डीबी स्कैन बाय चेंजिंग द वैल्यू? चेंजिंग द वैल्यू बेसिकली आशीष, एक्चुअली दोनों एक्चुअली ये क्या है यहाँ पे, इफ यू सी दिस, if you go here, where is this? Yeah, we're talking about this one, no? See this, यहाँ पे नीचे और होगा ना? हम्म दिस इज आप एप्सिलॉन वैल्यू। अच्छा, मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया ना मेथड, सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मेथड, ठीक है आशीष? मैं मेथड एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे ना अपना नोट पैड ऐड करने दो। मेथड तो एक्सप्लेन किया नहीं था ना, ये वाला डीबी स्कैन वाला, हो सकता है ऐसी समझ में आ गया। सो लेट मी ऐड माई नोटबुक ना, फिर मैं समझाता हूँ एक्चुअली क्या हो रहा है। और एक तो मैं आप लोग को टास्क दे रहा हूँ, ठीक है? तो जितने लोग हैं अभी तक, 10 लोग हो मेरे ख्याल से फिलहाल, है ना? 10 ही लोग हो ना मैक्सिमम। देखो, जो भी 10 लोग हो, एक मेरा टास्क है, आप लोग सबको करना है, मेरा मतलब असाइनमेंट है आपको। अब कुछ असाइनमेंट्स में जानबूझ कर दूंगा जो मैंने नहीं पढ़ा है, आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा गूगल वूगल करिए, ठीक है? मतलब एकदम वो मत बनिए। बाकी ये चीज़ बहुत हाई लेवल है, हाई लेवल मतलब कि आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ है, लेकिन मैं दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, एक इमेज लेना है, ठीक है? अब इमेज में डिफरेंट डिफरेंट कलर हो सकते हैं, लाइक वाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। आपको क्लस्टरिंग टेक्निक से उन कलर को क्लस्टर करना है। मान लो एक इमेज है जिसमें कप है, उसमें रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, कोई भी इमेज आप देखिएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब ये मत मैसेज करना कोई फोन, सर इमेज को रीड कैसे करेंगे? अब यार गूगल करो, इतनी छोटी छोटी पूछोगे तो फिर जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत तो मेहनत करो, ठीक है? इमेज को रीड करो, नंबर में कन्वर्ट करो, और यूज के मीन क्लस्टरिंग एंड एनी क्लस्टरिंग टू फाइंड द कलर्ड को क्लस्टर करो। रियल टास्क ये सब है, ठीक है? जो आजकल मतलब जिस लेवल पे काम हो रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें वो सब नहीं करना है, हमें अपने सिलेबस को फुल फ्लैश करना, वो करना है। ठीक है, देखो इधर। हाँ, इसको मैं समझाता हूँ यार, देखो इधर व्हाट इज यहाँ पे वो कह रहा है। देखिए क्या है, सपोज वी हैव अ डेटा लाइक दिस वन, ठीक है? दिस वन ऐसा डेटा है। अब जो डीबी स्कैन है वो क्या है एक्चुअली, इफ यू सी डीबी स्कैन ना, बेसिकली क्या है, ये है डेंसिटी बेस्ड मॉडल, ठीक है? तो ये क्या करता है, लाइक सपोज यू हैव सम डेटा लाइक दिस। सो एक ना, पहले तो ये एक गोला लेके आएगा, मान लो सर्कल है, आरबीएफ सर्कल है। सो you are giving epsilon value, that is radius of this, you are giving this radius, okay? Now we are giving another parameter like 2 या 3, you are saying कि minimum इतने नंबर ऑफ डेटा तो होने चाहिए। जैसे तुमने दिया था वहां पे 2, जैसे इफ यू सी दिस, यहाँ पर यार मिनिमम सैंपल्स 2, तो इस सर्कल में 2 का 4 सैंपल है, दैट इज ओके। रेडियस ले लिया, अब हमें 4 सैंपल मिल गया, ठीक है? नाउ सपोज आई मूव दिस टू हियर लाइक दिस वन, मे बी आई मूव लाइक दिस वन, maybe like this one. Again, it's greater than 2, that's okay. Now again I move it like this one. So I find is 2. Now again I move like this. Maybe like my radius के हिसाब से maybe ऐसा पड़ा, एक समझ लो ऐसे। तो अब ये तो लेस देन 2 हो गया, पहले तो लेस देन 2 हो गया, ये पहला काम तो ये लेस देन 2 हो गया। और ये कोर का नहीं है डेटा, तो हम इसको आउटलायर बना देंगे, ठीक है? आउटलायर बना देंगे। या फिर देखो, एक ऐसा ही कोई वैल्यू कि सिंगल क्लस्टर छोड़ देंगे, जैसे देखो यहाँ पे, इफ यू सी दिस रिजल्ट,
some whenever you get -1, no, that is your outlier. But if you see, sometimes you are getting like you're going 7. अब 7 बार बार नहीं, सिर्फ एक बार आया. तो in such case what we do, we make it 7. If you don't find कि if it's a core value, ठीक है, if score से related है, अब तो ये आप उसको outlier नहीं बोल सकते. But like this one, this outlier, so you can label this -1. But suppose it's related to core, it's not a outlier, then you can give any cluster name. Getting my point? So जब we'll do this, एक्चुअली अगर हमारे किसी डेटा सेट में टारगेट भी हैं और लेबल्ड है, मान लो 10,000 जीरो है, 10,000 1 है, 10,000 2 है, और मान लो 5 बार 3 आया, तो हम 3 को तो हटा ही देंगे, वैसे भी वो कोई काम कर बचेगा नहीं बहुत ज़्यादा हाई लेवल, अगर एक बार आया 2 बार आया तो, है ना, इतने डेटा सेट में. सो ये है बेसिकली आशीष, ये जो तुम्हारा ये वैल्यू है, तुम्हारा जो ये इसको बोलते हैं इप्सिलॉन. तो जो इप्सिलॉन है, ये बेसिकली तुम्हारी विड्थ है उसकी, है ना. और मिनिमम सैंपल, हाउ मेनी सैंपल मिनिमम चाहते हो, इससे कम हो तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे उसको. क्लियर आशीष? ओके. और किसी को डाउट? एनीवन? है किसी को डाउट? नहीं. तो अब देखिए, अब आप हमने पूरा ऑलमोस्ट कवर कर लिया है. एक शायद डिसीजन ट्री बचा हुआ है ना, बाकी कोई चीज बचा है क्या वो कंप्लीट करना है? आई बिलीव कंप्लीटेड एवरीथिंग ना. क्यों? आई थिंक डिसीजन ट्री नहीं किया है ना, बाकी सब कुछ कर लिया है. तो नाउ वी कैन स्टार्ट द प्रोजेक्ट. ठीक है, नाउ कैन स्टार्ट द प्रोजेक्ट. सो आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट विल बी, जो ये बता रहा था आपको. सो फर्स्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू, आई विल गिव यू द डेटा. ओके, एंड जस्ट फर्स्ट आई विल गिव यू द डेटा, ओनली आई विल गिव यू द डेटा. आपको पहले इस पे स्टार्ट करना है. ठीक है, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे. ठीक है, डेटा बड़ा आई विल शेयर इन द ग्रुप. मंडे आई विल डिस्कस. ठीक है, कि मेरा अप्रोच क्या होगा, बट आप अपना अप्रोच पहले लगाइए, जो आप सोच सकते हैं उस पर. सिर्फ डेटा होगा आपके पास, आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं उसमें. सो यू हैव टू फाइंड कि क्या क्या है, देन यू हैव टू थिंक कि इसमें मैं क्या करूं. बट डेटा जो मैंने बताया आपको IoT डिवाइस का है. ठीक है, सो फर्स्ट टेक योर स्टेप. ठीक है. अच्छा, कुछ लोग ना इतने खतरनाक वो ना ऐसे होंगे, अरे यार सर ने दे दिया, बन तो रहा नहीं है, इसीलिए दिया है कि ना बने. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे पता है आप ऐसे उंगली मजाक कर लोगे. आपको टाइम लगेगा, इट्स नॉट पॉसिबल कि ऐसे मजाक कर लोगे. आपको हो सकता है बहुत चीज़ गूगल करनी पड़े, बट करिए. ठीक है, जॉब में भी जाओगे तो कोई आपको बता, वहाँ तो कोई बताएगा भी नहीं कि करना क्या है. 2 दिन बताएंगे, तीसरे दिन से वो क्या करेंगे, आपके जो मैनेजर साहब होंगे ना, रिकॉर्डिंग बंद करना.